17th batch of Indian Police Services. I would request आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है और ट्विटर, नेट, एवरीवेयर आपकी तारीफ बिल्कुल छाई हुई है. We are honored to have you today. Now I would request. ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. The motivating and awe-inspiring words, sir. GT Goenka Public School, Punit Vasis Ji, and dear children of class 9, 10, 11, 12. I thank your school administration to invite me here for a talk to people with the young minds of Agra. Hope you all are from Agra. Yes, sir. Okay. I thank your school administration for giving me this opportunity to interact you all. This is called motivational speech, but I am not a motivational speaker. So pardon me if I'm not able to motivate you. Your presence is motivation for all of us. So I'll try to mix my talk in Hindi and English both, so that कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हिंदी में बताने में ही अच्छी लगती हैं. That's the most important thing for you people, and career does not mean only studies. Okay, you can excel in any field whichever you want. A bit of interacting. ऐसा बात नहीं है कि it's not difficult. Yes, इसलिए because the exam which I have cleared has around 1,000 seats, but the career C is looking at अब only 15. इंडियन टीम में कितना सीट्स होता है? 14-15. तो it's always good to choose your career before, so that you can work hard for it, so that you can make it to it. कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि whatever you want you will achieve. मूवी का डायलॉग सुना है ना? कौन सा? आप हाँ नो वन. आप जिस चीज को चाहो पूरी कायनात जी. तो वही बात है, उसी तरह करियर होता है. करियर से इतना मतलब whatever you want, you love that thing so much, you dedicate your 4 classes at the verge. मतलब 9, 10 तो फिर भी I can say that they have still an option. There's still have time to decide, but definitely 11 and 12th you have to decide a career. So it's better to decide your career right now and work for it. Never think that you will fail or pass. जो आपने डिसाइड किया है, you go for it. जो भी रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही होगा. आपकी अगर सच्ची लगन होगी, मेहनत होगी, डेडिकेशन होगा, हार्डवर्क होगा, डेफिनेटली आप सक्सेस करेंगे. उसके बाद अब बात करते हैं कि अगर आपने करियर डिसाइड कर लिया है तो अब आता है ये टॉपिक मोटिवेशन. अगर आप मोटिवेटेड होंगे देन ओनली यू कैन अचीव व्हाट यू वांट. और इसके लिए
It's always good to read. You read about many things. You read about the success of the people. जैसे KFC, you know who has started KFC? Huh? The old man. You know about him? You people know everything. ये आज के न्यू जनरेशन का ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है कि they have internet in their hands and they know everything. लेकिन एक इसका प्रॉब्लम है इंटरनेट का. You know everything but you don't give value to those things which needs to be required. तो आपने सबने KFC का नाम सुना होगा. मैं KFC की कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैंने KFC तो पहले से था, लेकिन मैंने KFC से मैंने सीखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. जब बेसिकली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वाज डूइंग माय जॉब इन बैंगलोर वे बैक इन 2013. उस समय इंटरनेट था लेकिन अपने हाथों में नहीं था, डेस्कटॉप पे था, लैपटॉप पर था. मोबाइल इतना इजीली अवेलेबल नहीं था और ये स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं थे. तो जो KFC की कहानी है, व्हेन आई रेड दैट, तो पहले मुझे हिम्मत नहीं होती थी कि मैं सिविल्स की प्रिपरेशन करूं, अपना वेल सेटल्ड जॉब छोड़ के वहां पहुंच जाऊं और जहां पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, एंड आई हैव वेरी लेस बिलीव इन माई सेल्फ. तो मुझे उस कहानी ने मोटिवेट किया. कोई बात नहीं, एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार होंगे. एंड दैट मैन failed throughout his life, but at the last of his life he created a thing which is known throughout the world. So this comes to a point that you should never afraid of your failure. अगर अपने फेलियर से अगर हम डर जाएंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे. अगर हम इस डर से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट ही नहीं किए होते कि पता नहीं हम सक्सेस करेंगे या नहीं, तो आज आप लोग शायद बात नहीं कर रहे होते. हम भी एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के रह गए होते. मैं दोनों स्टोरी को मिक्स करके इसलिए बता रहा हूं कि मैंने जहां से मोटिवेशन पाया, जैसे मोटिवेशन पाया वो मैं आपको बता रहा हूं, और जो मैंने किया. तो इसलिए जो इंटरनेट है उसका आप लोग अगर इफ यू मेक बेस्ट ऑफ यूज ऑफ इट, देन यू हैव लॉट इन इट. किसको फेलियर से डर लगता है? कितनों को? क्यों? बहुत लंबी छलांग लगाता था. तो एक बार एक बहुत बड़ा नाला, बहुत बड़ा डिग रास्ते में आया और वो इम्पॉसिबल था पास करने के लिए. लेकिन neither in his mind nor his horses ये ख्याल भी आया कि they will not be able to cross it, and they crossed it. तो सबसे जरूरी है, मतलब फेलियर को अवॉइड करने के लिए सबसे जरूरी है कि यू शुड ऑलवेज थिंक दैट यू विल एबल टू क्रॉस इट. कोई स्पोर्ट्समैन अगर ये सोच ले कि इस बॉल पे उससे छक्का नहीं लगेगा, वो हिट नहीं कर पाएगा, तो वो डेफिनेटली हिट नहीं कर पाएगा. क्यों? कोई हाई जंप लेता है, लॉन्ग जंप लेता है, तो उसके मन में ये ख्याल आ जाए कि शायद वो इसका ये अटेम्प्ट अगर अच्छा नहीं हो पाएगा तो कभी अच्छा नहीं हो पाएगा. बिकॉज द बॉडी जो आपकी आप लोग सभी बायोलॉजी पढ़ते होंगे, बॉडी जो आपकी है उसमें हार्मोन सेक्रेट्स होते हैं, एंड दैट ड्राइव यू. तो वो जो थॉट्स होता है, जो माइंड होता है, वो पूरा का पूरे बॉडी को, आपके एक्शन को वो कंट्रोल करता है.
एक आयोटा ऑफ डाउट भी आता है तो देन इट मीन्स इट विल हैम्पर योर परफॉर्मेंस. तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ क्या होना चाहिए, आपको पास करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. दोनों के बीच में डिफरेंस है थोड़ा. बात एक ही लगेगा कि फियर ऑफ फेलियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पास. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम फेलियर को अवॉइड करने के लिए जो भी मुमकिन हो वो करेंगे. तो उससे हम किसी भी चीज को, जो प्लानिंग होता है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन, ये जो स्टेज होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेगमेंट में आते हैं. और फियर वाले सेगमेंट में दैट डिमिनिशेस योर परफॉर्मेंस. लेकिन आप उसको दूसरे तरीके से सोचेंगे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, दैट कम्स इन द प्लानिंग स्टेज, तो दैट एनहांसेस योर परफॉर्मेंस. ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप फियर ना हो, किसी भी चीज से फियरफुल ना हो. एंड यू शुड, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑलवेज प्लान फॉर एवरीथिंग. योर करियर, योर डे, योर एग्जाम्स. ये दो मोटी बातें होगी. एक तो पहले हम लोग को हमेशा पहले थॉटफुल रहना है कि हम लोग को करना क्या है, और उसके जो करना है उसके लग जाना है, और उसके लिए फियरफुल नहीं होना है. और ये सब चीजें बहुत चीजों पर डिपेंड करती हैं. ये कहना तो बहुत आसान है, मैंने बोल दिया, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन ये होगा कैसे? यही दो बातें, ये होगा कैसे? So this will depend on in the atmosphere you live. If you create a positive atmosphere around yourself, then you will be positive. और अगर आप पॉजिटिव एटमोस्फेयर क्रिएट नहीं करेंगे तो आप पॉजिटिव, तो फिर मे भी हो सकता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, फिर आप जो सोच रहे हैं वो कर ना पाए. तो क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को मैं एक पर्सनल एग्जांपल से आपको बताता हूं. मतलब मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि 2013 I started the preparation with that one story. 14 was my first attempt. और 14th के अटेम्प्ट में I cleared prelims, mains and went to the interview. So till that time I was in Bangalore doing my job. लेकिन जब हो गया कि लगा, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है, कॉन्फिडेंस पर हम लास्ट में बात करेंगे. तो मुझे लगा कि प्री मेंस हो गया, इंटरव्यू तो हो ही जाएगा. तो फॉर इंटरव्यू आई केम टू दिल्ली. और वहां पे क्या होता है, वहां बहुत भीड़ है, पर्टिकुलर इस एग्जाम की तैयारी के लिए. तो मैं वहां आया तो वहां नए दोस्तों से मिला, लोगों से मिला, वो वर गिविंग इंटरव्यू. वो लोग बहुत पहले तैयारी करते थे. तो मैं उनका नॉलेज लेवल देख के मुझे लगा रहे ये लोग इतना जानते, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है. तो वैसे इन्वायरमेंट से एक निगेटिविटी क्रिएट हुई, और फिर मेरे मन में भी वो फियर आया कि आई कांट क्लियर. और वो लोग भी बोलते थे, मतलब they will ask something which is not required. Now I can judge. They will ask me something which is not required. और फिर जो मेरा एनवायरनमेंट है, मेरा जो एटमॉस्फेयर है, वो निगेटिव हो गया. तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? I didn't qualify. अगर ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब पता तो सबको होता है. इफ आई वॉज एबल टू अप्लाई टू माई सेल्फ, अगर उस दिन हो सकता था मैं 2 साल पहले क्लियर कर लेता. सो जस्ट आई एम मेकिंग दिस पॉइंट कि you understand means
अपने लाइफ से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यू शुड एबल टू रिकॉग्नाइज एंड यू शुड नॉट डू दैट मिस्टेक। आई एम मेकिंग सेंस? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? बताओ। When? Yes, yes. So let it be many competitions, not going far away, but we in the school, we try to attend those competitions, we try to attempt those tasks given to us, or we, qualify for that. But the thing is that we see that yes, there are more children participating over here who maybe are more capable of winning this. So we create a negative environment for ourselves. We create a negative thinking in ourselves that we may not be able to clear it, and hence it leads to a failure over there. True. Therefore, True. The atmosphere matters. ये तो मैं एक नेगेटिव एग्जांपल दे रहा हूँ, पॉजिटिव एग्जांपल देता हूँ इसका। फिर अपने लाइफ से I was a software engineer doing very well in my job. I didn't leave my job for preparation. I prepared along with the job. तो जॉब के साथ प्रिपरेशन का फायदा भी है, घाटा भी है। फायदा ये है कि यू हैव जॉब सिक्योरिटी, यू हैव हैंडसम सैलरी इन योर हैंड, और प्रॉब्लम ये है या घाटा ये है कि यू गेट वेरी लेस टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो मैंने बिना जॉब छोड़े हुए और बहुत कम पढ़ाई करके, मतलब you would have heard people study this much time, लेकिन मैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम पढ़ के एग्जाम क्लियर किया। तो ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जो एटमॉस्फेयर, पहली बार फेलियर के बाद जो मैंने अपने अराउंड एटमॉस्फेयर रखा, I never used to listen to anyone. मैं दोस्तों के पास सिर्फ इसलिए जाता था कि because of other things, not because of preparation. जो प्रिपेयर करते भी थे उनसे जाके मैं नॉर्मल, या फिर हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि अपना टाइम पास करने के लिए, तो फिर मैं उसी लिए जाता था। और आई ऑलवेज ट्राई टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक्स विद दोज हु विल मोटिवेट मी, विल नॉट डिस्करेज मी। तो इसका फायदा ये हुआ कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रही और आई वॉज एबल टू डू समथिंग गुड। तो इसके दोनों एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड आप लोगों के लिए आपका एटमॉस्फेयर, आपका स्कूल है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका घर है। This you मतलब what I'll suggest, you always try to have in a positive environment, and not for your career or anything. आज के मैं अपनी लाइफ की बात करूं, policing लाइफ के, which is too hectic, but we are able to do good. मतलब we do something, जैसे आपके घर में कुछ हो गया, कभी हो ना, लेकिन अगर किसी के घर में एक थेफ्ट हो गया तो no one knows कौन आया, कब आया, कैसे आया, क्या लेके गया। तो might be you have seen many detective series and all, तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है। और हम तो एलियन है, हम तो घर भी नहीं देखे हैं, हम भी नहीं जानते घर में रहता कौन है। हम वहां पहुंचते हैं और उसको वर्कआउट करते हैं। तो ये सिर्फ इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि जितने लोग हम लोग वहां जाते हैं एक इस पॉजिटिव माइंडसेट में जाते हैं कि हम लोग इसको वर्कआउट करेंगे। उसमें अगर कोई ये बोलने लगे नहीं हो पाएगा, ये क्यों करना है, ये क्यों करना है, बिकॉज वी डू 100 of things in which 99 are useless, totally useless, क्योंकि पता तो एक ही तरीके से चलेगा ना, लेकिन वो 99 चीजें करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करेंगे तो उस 100th which is correct वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे।
तो इसके लिए जो हमारा जो टीम है वो मोटिवेटेड होना चाहिए, वो पॉजिटिव माइंडसेट का होना चाहिए, यू नो, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस। वहां पे तो ऐसी टीम होनी चाहिए जो कि एक नया ऑप्शन ला के दे कि हाँ इसको भी ट्राई करते हैं। तो ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट का बहुत मायने रखता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, और आप लोगों को अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए। अगर आप कुछ दिन ट्राई करके देखिए तो मे बी विल फाइंड अ चेंज। अब इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है ना, वो कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस के बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। किसी भी सक्सेसफुल करियर के लिए, सक्सेसफुल इवेंट के लिए, जैसे ये भी आज एक इवेंट है, there is also an event for which your school administration and some of you would have taken pain इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ये पूरा अरेंजमेंट करना, सब चीज करना एक टास्क था, और आप लोगों ने इसको किया। तो जितना चीज मैं बता रहा हूँ सब चीज इसमें इन्वॉल्व होगा, इफ यू विल थिंक। और एक इंपॉर्टेंट बात जो होता है कि आप जिस भी चीज को चुनते हैं या करते हैं, मे बी यहाँ पे बहुत से सोसाइटीज होंगी स्कूल कैंपस में आपके, कोई लिटरेरी सोसाइटी होगी, स्पोर्ट्स होगा, डिफरेंट सोसाइटीज हैं। कितने सोसाइटीज हैं? 16-17। ओके, तो सबके एक मतलब हेड बॉय होंगे या हेड गर्ल होंगी सभी सोसाइटीज के। ओके, तो उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो कौन होते हैं? जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। और डेफिनेटली हमको ऐसा लगता है कि सभी सोसाइटी बहुत अच्छा कर रही होंगी। तो व्हाई? क्यों? बिकॉज दे हैव देयर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, very important in deciding the success of the organization and the individual. मतलब in our country the culture is not like that कि we promote everything from the start of the career, or you can say that from the start of the school. लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखें, बहुत से कंट्रीज में ऐसा होता है कि if someone is good at athletics तो उसको उसी में ज्यादा परस्यू करते हैं लोग, और if someone is good at shooting or different sports or research तो उसमें प्रमोट करते हैं। It's always good to choose a career in which you are interested. अगर कोई लड़का कोई स्टूडेंट होता है, उसको फिजिक्स में मन लगता है तो वो डूब जाता होगा। मैंने फिजिक्स एग्जांपल इसलिए लिया बिकॉज आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स का पता नहीं अब आप लोग HCO में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। तो मैं HCO का बुक लेके बैठता था तो मुझे पता ही नहीं चलता था कितना समय हो गया, और उसमें भी मैकेनिक्स। तो वो इंटरेस्ट था, उसके अलावा मतलब केमिस्ट्री मुझे इंटरेस्ट नहीं था। इट्स गुड टू हैव इंटरेस्ट इन ऑल, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो उसको इंसान करे, उसको करने में मजा आता है और पता भी नहीं चलता है। एक इमोशनल स्टेट होता है जिसमें ये कहा जाता है इफ यू आर डूइंग समथिंग so deeply, if something falls near you, you are not able to recognize it. तो ये इस तरह का आपके पास जो चीज आपको इस तरह से प्रेरित करती है, मतलब विच, तो फिर वो आपका रियल इंटरेस्ट है। एंड इफ यू डू दैट यू विल नेवर बी बोर्ड, फिर उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो हमेशा इंटरेस्ट वैसा ही मतलब फील्ड वैसा ही चुनना चाहिए जो आपको इतना एक्साइट करता हो, आप उसके लिए इतना एंथुसियाज्म फील करते हो।
क्योंकि इंथुजियाज्म, इंटरेस्ट, फन, ये सब एक दूसरे रिलेटेड चीज है। ये सब चीज जहां एक साथ होगा डेफिनेटली वो आपको आगे लेके जाएगा। जिसको पढ़ने में इंथुजियाज्म आता हो उसको स्पोर्ट्स की तरफ भेजें या वाइस वर्सा, तो दोनों गलत है। और फैमिली प्रेशर होता है, लेकिन आप लोग न्यू जनरेशन है, आप लोग के ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता जितना प्रेशर हम लोग के समय या सर लोग के समय हुआ करता होगा। You can easily convince your family and your family or your parents will understand. Pressure will be strict, sir. Huh? Pressure will be strict. Yes. तो अगर लेकिन you have to identify, your parents have to identify which field you want to go or in which field you can excel yourself. तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए। और अब इस करियर की बात में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मेरे मुताबिक लगता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस होता है। Everyone knows? Yes, sir. So I'm not talking about, don't misread me, I'm not talking about overconfidence, but confidence. Confidence. There are multiple examples in my life. और मुझसे जब भी कोई पूछता था तो मैं यही बोलता था, I am confident, तो हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूं उसमें जो गलत बातें हैं उसको नहीं सीखने की मुझे जरूरत है, ठीक है? जो अच्छी बातें हैं उनको सीखने की जरूरत है। अभी क्लास 10 पे बोर्ड होता है, बोर्ड एग्जाम्स आर देयर? Yes, sir. ओके, देन प्री बोर्ड विल आल्सो बी देयर। Yes, sir. हमारे समय में भी था प्री बोर्ड। और जब हमारा प्री बोर्ड था तो आई फेल्ड इन माय प्री बोर्ड, नॉट इन ऑल सब्जेक्ट्स, सिर्फ एक ही में फेल किया था। तो स्कूल was not giving me admit card for the boards, so I went to meet principals and all the teachers. और मतलब स्कूल से पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट था, कोई बहुत पढ़ने वाला भी नहीं था। तो लेकिन I was known to them for different reasons. तो सबने मुझसे बोला कि तुम कैसे पास करोगे, तुमको क्यों दे दे एडमिट कार्ड, बताओ। तो मैंने उनको यही बोला कि सर आई एम कॉन्फिडेंट दैट कि आई विल पास। और जो सब्जेक्ट के टीचर थे मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि सर आई विल नॉट लेट यू डाउन। और इस कॉन्फिडेंस से मैंने पढ़ाई की, मतलब फिर मुझे एडमिट कार्ड मिला, मैंने पढ़ाई की। और बाकी सब्जेक्ट का तो पता नहीं, जिस सब्जेक्ट में मैं फेल किया था उस सब्जेक्ट में मैं स्कूल का टॉपर था। उस एग्जाम में I still remember 7 January को I got the admit card और एग्जाम was from 1st or 2nd March। बहुत टाइम था। किसी भी चीज को पलटने के लिए समय होता है। एक कॉन्फिडेंस था। आप लोग कहेंगे कि मैं सिर्फ सेल्फ बूस्टिंग कर रहा हूँ। क्लास 10th आई वाज हिंदी मीडियम स्टूडेंट। फिर इंटरमीडिएट काउंसिल जो आप लोग जानते नहीं होंगे क्योंकि अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, उससे मैंने अपना +1 +2 किया। उसके बाद आई वेंट टू इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उस जमाने में कंप्यूटर्स थे लेकिन उतना इजीली अवेलेबल नहीं थे। और हमारे स्कूल में भी क्लास होता था वीक में 1 आवर क्लास, तो वही कंप्यूटर देखने का हम लोग को टाइम मिल पाता था, मौका मिल पाता था। और उसमें जब टीचर नहीं है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। So I went to engineering college and उसमें
फिर आई एम फ्रॉम बिहार, तो ऐसा कहा जाता है और कि हम लोग का मैथ साइंस तो अच्छा होता है, लेकिन जो टेक्निकल चीजें हैं ये अच्छी नहीं होती हैं। उस जमाने में तो डेफिनेटली नहीं हुआ करती थी, अब कुछ बदला होगा। तो आई वेंट टू इंजीनियरिंग कॉलेज इन कर्नाटका। सो फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट इंटरनल, आप लोग का इंटरनल एग्जाम होता होगा। Yes, sir. इंटरनल एग्जाम हुआ, सभी सब्जेक्ट से मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए, मतलब मैथ्स, फिजिक्स ये सब तो आउट ऑफ आउट रहते थे। तो कंप्यूटर का रिजल्ट आया, तो कंप्यूटर में मुझे आया आउट ऑफ 15 13 मार्क्स, एंड दैट वाज लोएस्ट इन द क्लास। तो फिर से हुआ वही, टीचर ने बुलाया पूरे क्लास के सामने, डांटा और बहुत कुछ बोला। लेकिन एक अच्छी आदत या बुरी आदत मेरे में है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लर्न फ्रॉम दीज हैबिट्स, मैं वही रिप्लाई कर देता हूँ। तो जब उन्होंने मुझे बहुत डांटा, तो दैट टाइम आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश आल्सो, तो मैंने उनको बोला, she was a female teacher, मैम अगली बार तो ज्यादा कुछ याद नहीं सकता है, अगली बार नेक्स्ट टाइम, मतलब आई टोल्ड इन हिंदी एंड शी वाज नोइंग हिंदी वेल, अगली बार मुझसे ज्यादा कुछ ला नहीं सकता है। तो अभी एग्जाम दिया है, नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है। तो व्हाई वाज एबल टू टेल दिस, ये मैं क्यों उनको बोल पाया, क्योंकि कॉन्फिडेंस, आई वाज कॉन्फिडेंट। और जिस कंप्यूटर को मुझे सी नहीं आता था, उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरनल आफ्टर अ मंथ होता है, मतलब 6 महीना का सेमेस्टर होता है, और 6 महीना में 1 महीना छुट्टी, मतलब 5 महीने में एग्जाम होता है, 1 महीना एग्जाम, 4 महीने में खत्म हो जाता है। पहला इंटरनल 1 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद, दूसरा इंटरनल से 1 महीने बाद। तो नेक्स्ट बार एग्जाम हुआ, एग्जाम का रिजल्ट आया और उस एग्जाम में मुझे 50 में 49 आया। और ये सब इसलिए हुआ, और ऐसा नहीं है कि जाके फाइनल में कंप्यूटर में टॉप कर गया, नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस मैंने जो कमिटमेंट किया था उसको मैंने पूरा किया, मतलब, और वो पूरा भी इसलिए कर पाया बिकॉज आई वाज कॉन्फिडेंट, और फिर एक कमिटमेंट किया था उस कॉन्फिडेंस के आधार पे, तो उसको पूरा किया। तो जस्ट आई वांट टू से दैट कि अगर आप कोई चीज चाहते हैं करना और उसके लिए डिटरमाइंड है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, फिर यू डू अकॉर्डिंग टू दैट। मुझे याद है कंप्यूटर का जिस दिन एग्जाम था, एक दिन में 2 या 3 इंटरनल होते थे, तो मैं सिर्फ कंप्यूटर पढ़ा था और कुछ नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस जब रहता है आप ना, तो यू वर्क फॉर इट। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल लाइफ में, मतलब मैंने 2 एग्जाम्पल दिए जो मुझे हमेशा याद रहता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो कि अ पर्सन इज एबल टू अचीव ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे यूपीएससी, अभी हम लोग करियर पर्सपेक्टिव पे थोड़ा बाद में आएंगे, इसके बाद मोटिवेशनल स्पीच के बाद, बिकॉज ऐसे यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ लिखने का एग्जाम होता है, मतलब मेंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रीलिम्स एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स इज ओनली अ क्वालिफाइंग एग्जाम व्हिच दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड, और उनको सिर्फ फिल्टर आउट किया जाता है। मेंस इज द मेन एग्जाम। और मेंस एग्जाम में क्या होता है कि यू हैव टू राइट एंड राइट 36 पेजेज मिनिमम इन वन पेपर एंड 2 पेपर, ऐसे 2 पेपर एक दिन में देने होते हैं।
तो हम बिकॉज ऑफ साइंस बैकग्राउंड एंड ऐसा बहुत अच्छा ये नहीं, मतलब पढ़ने वाला बहुत अच्छा तो था नहीं, तो मुझे लिखने की उतनी आदत नहीं थी। एक अच्छी चीज है कि मैं एक बार जो देख लेता हूँ वो याद रहती है, मुझे दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो मेरा स्ट्रेंथ है। इनमें वीकनेस था कि आई वाज नॉट एबल टू राइट। तो फिर एग्जाम जब मतलब पहली बारी में सिलेक्शन में मेंस में हो ही गया था, तो सब कहते थे कि यू हैव टू फिल अप 3 पेजेस इज गिवन फॉर वन आंसर। वो आंसर बुकलेट होता है, उसी में पिन होता है। तो लेकिन मुझे लगा, मैं ऐसा सोचता था बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस कि कोई जरूरत नहीं है, दूसरे लोग लिखते हैं तो लिखें, मेरा जो स्ट्रेंथ है मैं वो करूंगा। आई यूज्ड टू राइट द डिजायर स्टफ ओनली पॉइंट टू पॉइंट, और सिर्फ 1.5 पेज में। अगर मैं 3 पेज भरने चला जाता तो मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता। और एक क्वेश्चन में 3 पेज भरो या 1.5 पेज पढ़ो, मैक्सिमम तो 10 ही मार्क्स मिलेगा। जो उसका अलॉटेड मार्क्स है 12.5 मार्क्स होता है, वहां पे वही मिलेगा। आई यूज्ड टू कंप्लीट द एंटायर पेपर, लेकिन 1.5 पेजेस से ही। तो इसमें भी मेरे दोस्त लोग शॉक्ड रहते थे, कैसे तुमको इतना मार्क्स आ जाता है, तुम पेपर ही भर के नहीं आते हो। So if you are confident of something, you devise your own strategy, do it, you will get good, means you will get good results. तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा तो ये मानना है कि कॉन्फिडेंस ही है वो गेम चेंजर। बहुत से एग्जाम्पल है, मीन्स आई वाज स्टूडेंट इन माय इंजीनियरिंग लाइफ, ठीक है, बट आई गॉट द बेस्ट प्लेसमेंट in my branch. मैं आपको ये नहीं कहता कभी पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता था, मतलब प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए, तब सिर्फ कॉन्फिडेंस जाता था और कुछ नहीं। और लेकिन आप लोग को हमेशा पढ़ के जाना चाहिए। मतलब जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आई वाज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इफ यू पीपल नो। तो कॉन्फिडेंस एक कंपनी का इंटरव्यू था, और उसने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज अ रजिस्टर। व्हाट इज अ रजिस्टर, यू पीपल, मतलब ट्रांजिस्टर रजिस्टर यू डोंट नो। हाँ, ओके, तो मैंने उसको बताया, फिर उसको मैंने खुद से एग्जांपल दे दिया। तो जो एग्जांपल दिया फिर उससे पूछ लिया। कॉन्फिडेंस वी कैन से कि मैं उसको हमेशा एक ऐसा वर्ड देता था अपने आंसर्स में जो मुझे आता था, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ नहीं आता था, ये भी तो यू कैन ड्राइव द थिंग्स if you are confident, you can drive the things. जैसे जो फील्ड में जो 2 बैट्समैन होते हैं, जो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है वो दूसरे को ड्राइव करता है, जो ग्रुप में ज्यादा जो कॉन्फिडेंट होता है वो पूरे ग्रुप को ड्राइव करता है। तो ये हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ के हर पर्सपेक्टिव के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट हो। ये कुछ जो मोटी मोटी बातें थी मैंने बताई, ऐसे तो स्टोरी पे स्टोरी में सुनाता रहूंगा। अब मतलब विल स्टॉप फॉर दिस मोटिवेशनल थिंग, और आप लोग खुद भी बहुत मोटिवेटेड है। आई कैन सी charm and smile on your face. You all are motivated, and definitely you all will do good in your career. And I wish all the best for your career. बस इस टॉक को खत्म करने के पहले एक बार आप लोगों की तरफ से, if you want to listen anything from my side. So first thing, thank you so much, and we are honored to have you here, and you have motivated all of us in a very great way. I wanted to ask, like, when you went in Delhi to see the interview and you did not clear it, how come you got the courage to try again?
Like many of us stopped after just one attempt. Like it was courageous, but how do you get the confidence of trying again? And also you studied late and you also had a job. Yes. मेरा तो आंसर तो आपने ही दे दिया, because I was able to try again because I was in job, तो I was not disappointed much. लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तब हुआ जब 14th का अटेम्प्ट में इंटरव्यू देने के बाद 15th का प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हुआ. ठीक है, तो एक्चुअली डिसअपॉइंटमेंट तब नहीं होता है इफ यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट लाइक दैट अकॉर्डिंग टू यू व्हिच सूट्स यू. तो फॉर मी means a person from a middle class family, job security, you people will not understand now, but later after 4-5 years you will understand. It's very important. So I had a confidence of having a job, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि शायद मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ. लेकिन नेक्स्ट टाइम जब प्रीलिम्स नहीं हुआ तो I was disappointed. Then I took some time and played cricket for 2 to 3 months. पढ़ाई वगैरह सब छोड़ के, which is not good again. आप लोग मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन to energize yourself, कभी कभी जो चीज़ जरूरी होता है वो कर लेना चाहिए. फिर then again I came back and 16 I cleared. You have to wait for your time and keep motivated yourself till that time. Of a software engineer. So at what point you thought that you should leave the job and try for I something? never left that job. Yeah, like you had. I was doing that job, then I was selected in some another exam which is called SSC, Income Tax Inspector. So when I got selected in another exam, I left that job. Then again I cleared another exam. Then again I left that job. So if you're working hard, you have so many opportunities. Yes. Basically, you have to create your opportunities, and if you create one opportunity, you leave the other one. A very good morning, sir. Sir, I asked you that for how much time you should study for UPSC? ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछो. If I'll answer this question, तो फिर ना Nobody will study. तो फिर तुम लोग see, ask does not matter. It's matter that what you have to do and in how much time you are able to do. Yes. As I have told you, I have a strength reading a book only once. Scanning. Understand what sir is saying. Very important. Yes, sir. Understood now? Yes, sir. तो अपने स्ट्रेंथ को होता है डिसाइड करना चाहिए. टाइम कोई ऐसा नहीं होता है कि 10 घंटा पढ़ के ही निकलता है. ऐसा भी होता है अब 3 घंटा पढ़ेंगे तो भी निकलेगा. इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि अब 3 घंटा ही पढ़ें. और वो अपने स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि आप कितने देर में चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं, कैसे उसको रिटेन करते हैं, कैसे उसको प्लान करते हैं, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है. So first of all, thank you so much for coming here and motivating us. So I had a question that when you used to fail, your parents used to support you. Did they encourage you? Or what was their reaction? What was their reaction? I think she is asking. सी देखो, जो पेरेंट्स होते हैं ना वो हमेशा आपको सपोर्ट का इंटरनेट है, क्योंकि आपके पेरेंट्स के पास भी इंटरनेट था. लेकिन अभी हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पेरेंट्स के समय इंटरनेट नहीं था. तो जो एटमॉस्फेयर ऑफ नॉलेज है वो डिफरेंट पेरेंट्स के पास थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, और उस एटमॉस्फेयर पे उनकी थिंकिंग, उनका एक्शन और उनका आपके प्रति सजेशन डिपेंड करता है. कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं चाहते कि उनका बच्चा अच्छा ना करे और उसको सपोर्ट नहीं करते. सभी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं. वो अगर आपको कोई कहता है कि आप ये कर लो और ये ना करो, वो आपके अपने सोच से अच्छे के लिए ही बता रहे हैं. तो सभी पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, और पेरेंट्स से सपोर्ट था इसीलिए मैंने भी क्लियर किया.
और अगर कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है तो मैं उन्हें कन्विंस करता था, वैसे आप भी कन्विंस कर सकते हैं, एन एवरेज पेरेंट विल बी कन्विंस्ड। आप पहले कंप्यूटर साइंस में थे सर, उसके बाद आपने यूपीएससी क्लियर किया, तो सर आपका मेन गोल क्या था? मेन रोल गोल सर, जैसे आपने 11th और 12th में क्या सोचा था कि आपको क्या करना है? सर अगर आपने आईआईटी सोचा था तो आपने मतलब कंप्यूटर यूपीएससी पे फिर क्यों गए? अगर आपका यूपीएससी था तो आप फिर कंप्यूटर साइंस क्यों कर रहे थे? यही तो मैं बता रहा हूँ, मैंने पहली बात क्या बताई कि आई वॉज, पहला चीज कि वो डिसाइडेड नहीं था, ये कह सकते हो कि आई वॉज नॉट डिसाइडेड इन द इनिशियल ऑफ माई करियर। अगर वैसा होता तो मैं पहले ही अटेम्प्ट ले लिया होता। आई एम 2011 पास ग्रेजुएट, ठीक है, तो आई वेस्टेड 5 years और in others, but I look at in a different perspective that I gained experience of different fields. I've worked in bank, I've worked in software industry, I've worked in taxation, then I've come here. तो दोनों पर्सपेक्टिव है देखने का कि जो आपका पहले का जो टाइम आप कैसे देखते हो। I take it as an experience. और डेफिनेटली मेरा पहले ये एम नहीं था कि सिविल्स को अटेम्प्ट लिया जाए। आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड थिंकिंग अबाउट दैट ओनली। लेकिन कभी कभी लाइफ में कोई मोमेंट आता है जहाँ चेंज आता है, तो विद दैट आई केम हियर। अगर पहले पता होता है तो डेफिनेटली वो समय भी बचाता है। और इजी तो कह नहीं सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं विद देयर ग्रेजुएशन एंड दे नेवर क्लियर। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर आप पहले सोच के पहले से डेडिकेशन के साथ करते हैं तो दैट विल सेव योर टाइम। Sir, as you have said that you were not able to clear the UPSC exams in 13, 14, 15 and 16. No, not 13, 14. Yes, sorry. So, but there are times in life when that inner voice comes from inside. Is it really worth that what we are doing when we don't get an output from that thing? So, that, sir, what is the thing that keeps you going through the UPSC and civil services and quitting that job which you had? Sir, what is that force and what is that fuel which keeps you going? ये डिफरेंट होता है सबके लिए। दैट सिविल थिंग विल बी डिफरेंट फॉर यू, डिफरेंट फॉर मी, और वो खुद में सर्च करना पड़ता है। और मेरे लिए ये था कि I was already settled doing my job in a very good company with a very good salary. I was satisfied over there and I wanted to achieve this. So I was just trying, but trying with full dedication, motivation. Or if you are trying something, तो motivation to get that, वही फ्यूल होता है, वही एनर्जी होता है कि which keeps you moving. So civil services, the kind of job it is, यही मोटिवेशन था। तो मोटिवेशन तो क्लियर था, लेकिन होता क्या है कि बीच में लोग जो डिससेटिस्फाइड होते हैं, उससे फिर अगेन कैसे उसको ट्रैक पे आए, जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं ट्रैक पे कैसे आए। तो उस ट्रैक पे आने का 2-3 जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वो एक डेडिकेशन है प्लस योर स्ट्रॉन्ग विल पावर। फिर जो मैंने सब बातें बताई कि फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए, यही है। आई वॉज कॉन्फिडेंट, मतलब जब मैं पहली बार एग्जाम दिया और 2013 में मैंने स्टोरी बताया कि मैंने वो स्टोरी पढ़ा था, उसके बाद 2-3 महीने बाद, उस समय आई थिंक अप्रैल या मई में एग्जाम हुआ था, जो मतलब बहुत कम समय था, 5-6 महीना ही, which is very less for preparation for a new guy like me, जो साइंस का एक्सपीरियंस है और उसको पता भी नहीं है जनरल नॉलेज होता क्या है, सिलेबस तक पता नहीं है यूपीएससी का होता क्या है। मतलब जैसे आज आप लोग हैं वैसा मैं उस वक्त था, बट ओनली विद ग्रेजुएशन डिग्री। तो वो सब कम समय में कर पाना थोड़ा मुश्किल था, वो मैंने कर लिया तो उससे कॉन्फिडेंस आ गया, एक और आगे पैर बढ़ा दिया। जब आप एक लंबा जंप लगाते हैं तो उसके बाद का जंप उससे भी लंबा लग सकता है।
Hope I answered your question. So what was the main time you used to study even when you were doing a job? Like how did you cover the whole course in short period of time? History of ours. मेन वही क्वेश्चन है. तो अब मैं बता देता हूँ, नो वन विल ट्राई दिस. ठीक है. और सिंस ऑल ऑफ यू आर ग्रोन अप, तो ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसमें अच्छी बातें चुननी है, गलत बातें नहीं. ठीक है, पहले डिस्क्लेमर है ये. तो मैं अपने घर से, मेरे ऑफिस जो पहली मीटिंग होती थी 12 बजे, मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर प्राइवेट सेक्टर में सब चीज़ फिक्स होता है. अभी गवर्नमेंट जॉब में तो रूटीन ही नहीं होता है. वहाँ फिक्स होता था कि जो पहली मीटिंग है वो 12 बजे होगी, एंड दैट वाज कॉल्ड स्क्रम. इफ यू पीपल गूगल तो यू गेट टू नो, मतलब व्हाट यू डिड इन लास्ट 24 आवर्स, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट. तो आई यूज्ड टू रीच ऑफिस एट दैट टाइम एग्जैक्टली. 12 बजे मैं ऑफिस पहुंचता था. ऑफिस का टाइमिंग 9:30 बजे 9:30 से था, एंड आई यूज्ड टू रीच लेट. उसके बाद 12 बजे ऑफिस पहुंचा, मीटिंग किया, सारा काम किया. ऑफिस खत्म भी होता था 5:25 या 5 समथिंग. तो मैं अपना काम करके 8 बजे तक सारा, क्योंकि जब ऑफिस में जब लोग होते हैं ना, तो दे विल डिस्टर्ब यू, दे विल डिस्ट्रैक्ट यू. यू विल गो फॉर टी, यू विल गो फॉर लंच, यू विल गो फॉर डिफरेंट थिंग्स, यू विल गो फॉर रिक्रिएशन एंड ऑल. सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मतलब ये सब रहता है, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है. इफ आई मतलब अगर मैं 9:30 से भी जाता और फिर 6-7 बजे भी आता, तो इन सब चीज़ों में वेस्ट होता टाइम. मैं 12 बजे जाता था, और जब सब चले जाएंगे देन यू विल गेट फ्री टाइम और योर ओन टाइम. तो 8 बजे या 8:30 बजे घर आया, और फिर नेक्स्ट डे 12 बजे. बीच में 8 घंटा सोना है पक्का. ठीक है. और बाकी अपना जो मुंडेन एक्टिविटीज होता है वो भी करना है. तो इसमें जोड़ लो कितना टाइम बचाए पढ़ने के लिए. I used to study 2 hours in the morning, okay, और फिर रात में जितना 2-3 घंटे जो मिल जाए. But you had the special scanning machine, which once you read and then you. तो वो अपना स्टूडेंट डिसाइड करना पड़ता है, तो that helps. And now you're serving as a reputed IPS officer to the nation. So what would you think you will try to bring changes to the society with the help of your position in the future? Once you come into the service, then you realize this is a complex system. और सबका यहाँ अपना अपना रोल है. तो अगर if you are doing your own role with integrity, dignity, and with discipline, so that itself is a change you are bringing. Or to answer your question, this profile itself allows me to bring a change in the lives of people. If someone is not able to get justice, if he or she comes to me, तो अगर मैं उनको फैसिलिटेट कर देता हूँ, अच्छे से उनको जस्टिस दिला पाता हूँ, तो दैट इज लाइक ब्रिंगिंग अ चेंज इन हिज लाइफ और हर लाइफ. और वैसे मैं बहुतों की लाइफ में चेंज लाता हूँ, और मेरा जो यहाँ पे काम करने का तरीका है, या फिर पहले भी जो तरीका रहा है, जैसे जैसे इफ यू रीच टू अ हायर लेवल, तो यू डू means major works. आप छोटे छोटे काम नहीं कर सकते. If you are CM of this state, if you are PM of this country, you can only devise a plan. You can devise new laws. लेकिन अब जो मेरे लेवल पे जो है, मेरे लेवल पे या पुलिस तो मेनली एग्जीक्यूट करती है लॉज को, तो हम लोग उस लॉज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर ले, यही सबसे बड़ी बात है. और
उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग भी अपने स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि हाउ द पुलिस विल फंक्शन इन द सिटी। और उसमें मैं एक चीज जो करता हूँ, जितने भी लोग आते हैं, इन विच इफ आई थिंक समवन नीड्स अ हेल्प, तो मैं सबको परस्यू नहीं कर सकता। मीन्स अराउंड व्हाट आई कैन से 400-500 कंप्लेंट्स कम्स टू मी इन अ वीक। मैं सबको परस्यू नहीं कर सकता। आई हैव आल्सो 24 आवर्स एंड यू हैव आल्सो 24 आवर्स एंड देयर इज डेजिग्नेटेड एवरीथिंग फॉर एवरीवन। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो चेंज का फीलिंग लाने के लिए या फिर जो सेटिस्फैक्शन का फीलिंग लाने के लिए उस 400 या 500 में से एक केस को सिलेक्ट करता हूं विच आई विल परस्यू टू द कंक्लूजन इन अ वीक। और फिर मैं उसको कंक्लूजन तक ले जाता हूं। और बाकी का एज अ रूटीन देयर इज अ सिस्टम, एंटायर सिस्टम which monitors those 500 complaints in my office, but I personally monitor one complaint in a week and ensure that reach to the conclusion. You face the demotivation by the society, relatives and the friends. Like they always will demotivate you, the fake friends. That कि आप नहीं कर पाए तो आप फिर से करके क्या कर लोगे? That thing. मतलब मैं सभी की बातों को उतना ध्यान नहीं देता, विच मतलब जो बातें अगर आपको प्रेस करेगा, डेफिनेटली लाइक दैट पर्सन एंड समवन विल फाइंड फॉल्ट्स इन यू, यू विल नॉट लाइक दैट पर्सन। तो दोनों गलत हैं। आपको डिसाइड करना है कि वो किसकी बातों को सुनना है और किसकी बातों को सुनकर निकाल देना है, किसकी बातों को दिल से लगाना है और किसको नहीं लगाना है। तो ये मैच्योरिटी जब आ जाती है तो फिर वो लाइफ बहुत इजी हो जाती है और मैं इसको चूज कर पाता हूँ। इसलिए इट्स ऑलवेज मतलब द की टू लाइफ इज टू बी हैप्पी और कुछ नहीं। तो जितने आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसकी बातों को दिल से लगाना है। तो अगर आप लोग डिसाइड कर पाते हैं तो विल ऑलवेज बी हैप्पी। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि सबकी बातों को नजरअंदाज करना है, ऐसे भी लाइफ नहीं चलती। ये आपको चूज करना होगा। Prince Pandya and my insight was basically that I observed that a school basically holds these motivational talks from time to time, and at the end of the motivational talks, students are just pumped up and excited and enthusiastic. But after a while, this excitement seems to just go downhill. And it's समाप्त हो जाती है excitement. So like, what can we do to maintain this motivation and turn it into discipline? कुछ नेचुरल लॉज होते हैं, जैसे सन ईस्ट में राइज करेगा, वेस्ट में सेट करेगा, ये सब कुछ नेचुरल लॉज हैं। तो नेचुरल लॉज कोई चेंज नहीं कर सकता है। एंड व्हाट वी आर सेइंग इज नेचुरल, इट्स नॉट एबनॉर्मल, इट्स नेचुरल। तो अब जो हमेशा मोटिवेटेड कोई इंसान नहीं रह सकता है, लेकिन इन स्टॉक्स से ये होता है कि मोटिवेशन मिलती है, और जब मोटिवेशन आपको मिलती है तो यू हैव टू डिसाइड समथिंग। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है which is who is good in every field. He can't drive Formula 1. तो आपको अपना फील्ड इस जो ये जब आप एनर्जाइज हैं तो अच्छे से सोच के एक अपना फील्ड डिसाइड कर लेना है, फिर उसमें आपको एक्सेल करना है। और जब उस रास्ते में आप चलेंगे तो देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। तो आपको फिर जब वो अप्स एंड डाउन्स आए तो फिर आपको उस मोटिवेशनल थॉट्स को या फिर बातों को याद करना है, एंड देन अगेन यू विल बी मोटिवेटेड। और सबके लाइफ में आता है ये, सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आता है, whoever he be. These all are natural laws of the life. Okay, just accept it. How should we avoid these distractions? We are not able to concentrate on our studies.
डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता. That interests you. What do you do anything which does not interest you? तो फिर डिस्ट्रैक्शन कैसे है वो? I used to play games earlier and I still play games. Yes, So due to that's which good. I've lost I also interest still in- play. So what is wrong in that? So the point is that it's not distraction. Just you have to plan, okay? That you are able to do everything. And the most important जो आपका मेन बात है उसके लिए आपको appropriate time मिले. इससे सबको प्लान करना पड़ेगा. If you do surfing, you should do. If you play, you play. If you play music, you play. There's nothing wrong in doing anything which is not harming others. And if that thing is giving you positive energy, so you should do that. और जो ऐसा कतई नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, मैं अपनी लाइफ से बता रहा था कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट यू शुड स्टडी फॉर 10 hours और 8 hours टू क्लियर द एग्जाम. सब कुछ किया जा सकता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में. आप केवल ये करें कि जो आपका मेन एजेंडा है उसके लिए आप अप्रोप्रिएट टाइम दें. इफ पीपल आर गिविंग 4 hours फॉर इट, यू गिव एटलीस्ट 2 hours फॉर इट. ऐसा ना करो कि नहीं हम 1 महीने बाद इसके लिए समय निकालेंगे. अगर 2 घंटे भी उस चीज के लिए आप रोज दे रहे हैं तो इट्स फाइन, बिकॉज बाकी टाइम आप फ्रूटफुल चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं. एंड इफ यू प्ले म्यूजिक, अगर उससे आप रिजुविनेट हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर दैट इफ यू आर स्टडीइंग, तो आप उसमें ज्यादा ग्रास्प कर पाएंगे. वो 4 घंटे बुक लेकर बैठने से कोई फायदा नहीं है. 1 घंटे ही लेके आप बैठो ऐसा कि यू विल बी मींस विद योर 200-300% कंसंट्रेशन, तो फिर दैट इज मोर बेनिफिशियल. डिस्ट्रैक्शन उसको कहते हैं जो गलत होता है. जो सही है वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी, आई माइट बी रॉन्ग. You're right, sir. फिजिकल फिट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो सर आप अपने आप को फिजिकल फिट कैसे? हाँ, फिजिकली फिट रहना मेरी जॉब में नहीं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है. आप सबने वो लाइन सुना ही होगा. हाँ. तो फिजिकली फिट रहने के लिए मतलब बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग थ्रू विच आई हैव गॉन, तो उसमें हम लोग का बहुत रिग्रेस रहता है फ्रॉम 5:20 in the morning till 7 o'clock in the evening. तो वी डू लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज. तो उससे आदत पड़ जाती है. और सबको करीबन 1 घंटा तो देना ही चाहिए अपनी बॉडी को, बिकॉज इट्स योर ओन बॉडी. और सब कुछ इससे भी डिपेंड करता है. If you live fit, you will be healthy. If you have a healthy body and a healthy mind, then only you can do great. नहीं तो फिर अगर मान लो यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है, तो फिर तो उसी पे ध्यान चला जाएगा. It's always required to give an hour to your body. Questions हो गया? तो अब मतलब एक लास्ट चीज मेरी तरफ से, मैं जहां भी जाता हूँ बात करता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन सिविल सर्विसेज? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. ठीक है, तो आप लोग इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. यस. Like you said that you had an interest in physics, maths and all. So like we have always heard that for civil services we need history. We need to focus on SST. So like, will you just suggest like how did you pave that path? See, when I was of your age, so I had an interest in physics. I studied. I completed my graduation. लेकिन उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ये नहीं रह गया कि फिजिक्स, मेरा इंटरेस्ट ये रह गया कि आप तो क्लियर द एग्जाम. ठीक है, और
एग्जाम क्लियर करने के लिए, एग्जाम क्लियर करना इज अ पाथ, और इन दैट पाथ I can choose to run barefooted, with a shoe, with a chappal, anyway, with anything. So I chose to run with the subject social science. My option was political science. I chose to run with political science. So if I have chosen wholeheartedly, so that becomes my interest for that moment. And if I have an interest in physics, I can do well in physics. And if I am able to create interest in political science, I can do well in that also. आपको पता ही है, चैलेंज तो ले ही लेता हूँ मैं. Thank you, Yati ma'am. Good morning, everyone. Good morning, sir. So, in this series of meeting, one software engineer, one taxation officer, and one great student who been a failure throughout his life and then become a successful IPS officer. Congratulations. See, as far as learning is concerned, we can learn with anyone. And in school, we're thankful to our Vice Chairman Sanjay Gawali. He's been kind enough. He always gives the opportunity to invite such personalities in the school so that we learn a lot. Not only you people, you also learn a lot. And learning never stops. So I learned a lot with you, sir, today. I hope we all will do something good after listening you. It is my assurance on behalf of all students. And some of the officers, very soon, maybe in a 5, 6, 10 years, you will see the department. Class and letting us know your life experiences. Thank you very much.